Very good morning, everyone. We shall begin in 2 minutes. Let the other students join as well. Okay. All right. Very good morning, everyone. I hope I'm clearly audible to you all. Yes. So we are meeting here for the discussion of a couple of chapters in Science 1 of your SSC syllabus. As you are aware, the CET will be based on completely SSC syllabus. So we need to focus on that. They have given some, kind of, you can say, specificity in the syllabus, which they have mentioned. English, science, maths, and social studies. These are the 4 subjects, as you are familiar. In terms of science, we need to revise probably all chapters in details. Remember, children, MCQs, they seem to be simple. 4 options होते हैं, हम लोग को कोई ना कोई एक सिलेक्ट करना है. It is not that problematic as such. लेकिन MCQs are probably the most difficult type of question to solve, because you need to be absolutely thorough with your knowledge. The question can be analytical based. It is not a subjective paper, जिसके लिए हम लोग ने काफी साल से मेहनत किया हुआ है. First standard से लेके up to 10th standard, majority of the question papers or exams which we have given, in which subjective answers are main, ज्यादा वो पूछे जाते हैं. And we have a habit of learning particular answer from, you can say, notes or guide or whatever you are using. तो उतना आंसर लर्न किया तो वी आर हैप्पी कि बाबा वो जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे के वैसे मैं लिख दूंगा. बट एमसीक्यू में ऐसे नहीं होता है, चिल्ड्रन. एमसीक्यू में यू नीड टू हैव अ प्रॉपर थरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ऑफ द टॉपिक विच इज अंडर कंसिडरेशन. Accordingly, you need to apply that and answer it. Okay, so एक 25 MCQs साइंस के आने वाले हैं. टोटल चैप्टर्स फॉर एसएससी is 20. Science 1 में you have 20 lessons, Science 2 में you have 20 lessons. So it is definitely expected कि one question will come from each chapter for sure, and along with that there might be some repetitions as well, क्योंकि 5 questions है और 20 questions का होता था तो straight forward हो सकता था, one question from each chapter. So study accordingly, properly read करो. I will advise you to read the textbook also. Science के textbook read करके रखो. And MCQ solve करने का सबसे best तरीका रहता है कि while you read, you maintain or you make your own notes. आप खुद के notes बनाओ. You take a notebook separately. I know आप लोग के पास 10th के notebooks है already. Then you already have, you can say, notes which is provided by the classes or workbook as well. Many things you already have. लेकिन ये MCQ पैटर्न में हम लोग को स्टडी करना है. So from that point of view, it is very important that you should have your own notes. So when you read a chapter, whatever the chapter might be, आप जैसे रीडिंग करते जाओगे, anything which you find important, you should immediately write it in your notebook.
सो इसको हम लोग एक राइटिंग पैटर्न एंड अंडरस्टैंडिंग पैटर्न कंसिडर करते हैं. Yesterday's lecture, I think Anuj sir discussed with you two chapters: periodic classification of elements and then chemical reactions and equations. तो दो chapters अगर आपने study किए होंगे, तो start reading through the notebook, through the textbook especially, and write simultaneously in your special notebook of science. Today, I'm going to start with the chapters from physics section, gravitation and उसके साथ साथ space missions. अब पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग स्टडी नहीं कर सकते. एंटायर चैप्टर स्टडी करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है. ट्रेमेंडस टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द एंटायर चैप्टर, बट एटलीस्ट वी कैन डू इज अ काइंड ऑफ सिनॉप्सिस. जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके अंदर जो हम लोग को याद रखना है, because these chapters are from physics background, there will be some formulae which are important. तो ये important formulae, maybe some laws, derivations, rules, whatever they are, वो हम लोग को थोड़े से अच्छे से याद करना है. तो अकॉर्डिंगली मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके साथ डिस्कस करूंगा. देन प्रोबेबली आफ्टर 1 hour आई एम गोइंग टू सेंड यू ऑन एमसीक्यू. मैंने एक 25 एमसीक्यूज का क्वेश्चनर बनाया हुआ है. जो आज डिस्कस करने वाले हैं उसी के ऊपर वो क्वेश्चनर है. दैट इज चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन एंड चैप्टर ऑफ स्पेस मिशंस. तो लास्ट हाफ एन आवर और लास्ट 20 मिनट्स हम लोग वो एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे. तो आई विल इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग द एमसीक्यूज. आपके जो दो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, एक ग्रुप बनाया एसएससी स्टूडेंट्स के लिए, एक ग्रुप बनाया आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए. तो दोनों ग्रुप्स में वो एमसीक्यू में फॉरवर्ड कर दूंगा एंड यू विल नीड टू सॉल्व इट. देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी सिंगल आंसर. एक 25 एमसीक्यूज का हम लोग का टारगेट है आज का. After discussion of the synopsis or summary of these two chapters, gravitation, and उसके साथ साथ we can also consider अपना space missions का chapter. ठीक है? तो I will start with my screen sharing. If you want, you can simultaneously write with me. If you are comfortable, तो आप simultaneously मेरे साथ लिखना start करो. जो भी कुछ doubts वगैरह आते हैं, you can ask me in the chat box. I will try to answer them as early as possible. Or you can even raise your hand and clear them. But don't expect कि पूरा डिटेल में एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा. It may not be possible. I will provide you with notes from my side. मैं आपको notes send करते रहूंगा आपके दोनों ग्रुप्स के ऊपर. But efforts are equally required from your side as well. That is, you need to read the textbook and prepare your own notes. Simple points जो mention करने हैं वो. All right, so let's begin. मैं screen sharing start कर रहा हूँ. Okay, I hope it is clearly visible to you all. Yes, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं regarding gravitation. So let me just mention that quickly. The first chapter of SSC Science 1 syllabus, that is gravitation. When it comes to gravitation, obviously certain points we should not neglect or we should take a note of them. एक points मैं mention करते जाता हूँ simultaneously. You can write. First thing we can remember is centripetal force. The force centripetal, ये T word से मैं याद रखता हूँ. It is always directed towards the center. हमेशा सेंटर की तरफ को डायरेक्टेड रहता है. Yes, Kshitij, you can prepare the notes later on by reading the chapter, by reading the textbook on thorough basis. Okay, I'm not reading the textbook and making the notes. I'm giving you the notes, whatever important points are there, but it is better if you prepare your own notes using, the textbook properly. You will find many things being covered by me. Still, I would advise to go through the textbook. And इसके similar और एक force जो रहता है, that is centrifugal force. तो centrifugal force is generally away from the center. Yes. इसके बाद we focus on, you can say, the Kepler's laws.
Johannes Kepler, who was working as an associate to Tycho Brahe, was observing the motion of planets, sun, different celestial bodies by normal eyes. He was not that much using any special binocular or telescope, nothing like that. So by making some normal observations, he had put forward some laws which are preferred as Kepler's laws of planetary motion, जिसको हम लोग ये ऐसे पर्टिकुलर नाम देते हैं. तो केपलर्स लॉज में टोटल 3 लॉज है. अब तीनों लॉज का स्टेटमेंट वाइज मैं यहाँ पे टाइप वगैरह नहीं कर रहा हूँ. आई होप यू कैन डेफिनेटली मैनेज दैट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. प्रॉपरली बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं, बट एक एक लॉ किसके बारे में हम लोग को इंडिकेट करता है, दैट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. सो जस्ट लेट मी गिव यू द हेडिंग एज केपलर्स लॉज. ओके, देन आई विल ड्रॉ अ रफ डायग्राम. आप भी ड्रॉ कर सकते हो कि दिस इज द पोजीशन ऑफ योर sun. S stands for sun, and there is the position of the orbit. This is the position of the orbit, which can be considered something like this. ये एक planet का orbit है. We can draw a planet as well, that is considering it is an Earth. Okay, so यहाँ पे इसके ऊपर मैंने E mention किया हुआ है, which is the Earth. All right. So first law जो रहता है, first law of Kepler emphasizes on, मैं यहाँ पे 1 number mention करता हूँ. First law of Kepler emphasizes on orbit of a planet. Planet का orbit जो हम लोग in general consider करते हैं कि it might be circular, but it is not circular, children. It is elliptical. It is elliptical. Remember, ये elliptical orbit होता है. Okay. So orbit of a planet is always an ellipse. तो मैं ये just एक mention करता हूं यहाँ पे short में. Orbit of planet is always an ellipse. Ellipse, हाँ, properly लिखना उसको. Ellipse. What is important thing to be remembered? अब ellipse is a part which can be studied in geometry. अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर कोनिकल शेप स्ट्रक्चर है, उसको मैं ब्रेक करता हूं स्लैंट में, तो whatever is prepared is nothing but called as ellipse. Inclined section बोलते हैं. yes, जिसने आंसर भेजा absolutely right. तो these are 2 focal points. यहाँ पे आपको जहां मेरा स्पॉटलाइट घूम रहा है, this is the first focal point. This is another focal point. So there can be any one out of these 2 foci जहां पे sun का position रहेगा, right में होगा या left में होगा, it depends from planet to planet. तो okay, तो इसी में हम लोग यही mention करेंगे, sun at one of the foci. Sun at one of the foci. ये एक याद रखना है. दिस इज द फर्स्ट लॉ. अब सेकेंड लॉ में क्या कंसिडर करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करो. सेकेंड लॉ में क्या कंसिडर करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करो. ओके, अर्थ का पोजीशन, लेट अस से टुडेज डेट इज एज वी नो 23 जुलाई 2021. ये आज का डेट है, राइट. लेट अस कंसिडर आफ्टर 1 month. 1 month के बाद अर्थ का पोजीशन चेंज होगा डेफिनेटली. सो अर्थ का पोजीशन लेट अस से इट इज ओवर हियर. मैं यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो मेंशन करता हूँ वापस ई. एंड 1 month के बाद बोल रहा हूँ, मतलब कैन आई मेंशन 23 अगस्त 2021. ये ऐसे. तो 1 month के बाद देयर विल बी सर्टेन मूवमेंट, बिकॉज एज वी आर अवेयर कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो डेफिनेटली 1 month में कुछ ना कुछ वो मूवमेंट करेगा. ओके, लेट अस गिव कंसिडरेशन की और एक जगह पे अर्थ का पोजीशन है. देयर इज अर्थ का पोजीशन कंसिडर समवेयर एल्स एज वेल. और एक जगह पे मैंने कंसिडर किया हुआ है, तो वहां पे मैं ई मेंशन करता हूं. एंड जस्ट मैं रैंडमली उसको कोई डेट अलॉट कर रहा हूं. एक रैंडमली उसको मैं डेट कुछ अलॉट कर रहा हूं. लेट अस कंसिडर द रैंडम डेट according to me is 26/11/2021. 26/11 पे वो वहां पे प्रेजेंट है. अब 1 month के बाद उसमें भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा. देयर विल बी सम मूवमेंट फॉर श्योर.
तो 1 मंथ के बाद मैं यहाँ पे उसको शो करता हूं, देयर इज द पोजीशन ऑफ योर अर्थ 1 मंथ, मतलब कैन आई मेंशन द डेट एज 26/12/21, ये ऐसे। तो ये 1 मंथ में इतना ट्रैवलिंग हुआ, जस्ट मैं अगर उसके ऊपर फोकस करना है वो पार्ट के ऊपर कि 1 मंथ में ये देखो ये इतना डिस्टेंस कवर किया गया, मैंने जस्ट उसको हाईलाइट किया हुआ है यूजिंग द रेड मार्कर। अब इफ टाइम इंटरवल इज सेम, मतलब टाइम इंटरवल सेम मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे भी मैंने 1 मंथ कंसिडर किया हुआ है एंड यहां पे भी मैंने 1 मंथ कंसिडर किया हुआ है। तो इफ टाइम इंटरवल इज सेम, देन इफ आई ज्वाइन सम लाइंस ओवर हियर, अगर मैं कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ये एक एंड द सेकेंड वन समवेयर लाइक दिस, अगर मैंने ये ज्वाइन किया हुआ है, देन सेम मैनर में दिस एंड दिस वन, ये कुछ मुझे ज्योमेट्रिकल फिगर्स मिलते हैं यहाँ पे, ये कुछ मुझे ज्योमेट्रिकल फिगर्स मिल रहा है। नाउ द एरिया ऑफ दीज ज्योमेट्रिकल फिगर्स, द एरिया ऑफ दीज ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग यू कैन से द डेट्स, आई कैन अलॉट सम पर्टिकुलर नेम्स टू दीज पोजिशन। प्रॉपर डेट्स लिखने के बजाय मैं कुछ ना कुछ नेम्स अलॉट कर सकता हूं। लेट अस कंसिडर दिस एज पोजीशन ए, लेट अस कंसिडर दिस एज पोजीशन बी, लेट अस कंसिडर दिस एज पोजीशन सी एंड लेट अस कंसिडर दिस एज पोजीशन डी। तो अपने केपलर भाई साहब का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ इट टेल्स अस दैट व्हेन टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, when time intervals are equal, at that time area covered, area covered, अब ये कौन सा एरिया आएगा, तो ऑब्जर्व करो मेरा स्पॉटलाइट, ए एस बी ये वाला एरिया, ए एस बी ये वाला एरिया एंड सी एस डी एंड सी एस डी, बोथ दीज एरियाज विल बी इक्वल। तो यहां पर मैं मेंशन करूंगा व्हेन टाइम इंटरवल इज सेम और इक्वल, area of ASB is equal to area of CSD। ये दोनों के एरियाज कॉमन आते हैं चिल्ड्रन, दोनों के एरियाज कॉमन आते हैं। यू माइट बी थिंकिंग हाउ इज दैट पॉसिबल, तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज जो भी प्लैनेट रहता है उसका रिवोल्यूशन का जो स्पीड है इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल द एंटायर ईयर। whenever is the planet is can be considered closer from the, you know, from the respective sun, that time the speed is greater, and whenever it is very far away from the sun, that time the speed is little bit lower। तो उसकी वजह से when I consider A से लेके B तक 1 month में जब वो planet travel कर रहा है, सेम 1 month में C से लेके D तक वो प्लैनेट ट्रैवल कर रहा है। सो द टाइम टेकन ओवर हियर एंड ओवर हियर एज सेम, एज अ रिजल्ट दिस एरिया CSD, CSD and this area ASB will be equal, this areas will be respectively equal। line joining the planet and the sun covers or sweeps equal areas in equal intervals of time। This is what the actual law tells us। line joining the planet and the sun sweeps or covers equal areas, ये दोनों areas equal होने वाले हैं when equal intervals of time is there, उस तरीके से। This is what our second law tells us। Let's turn our attention to the third law। अब थर्ड लॉ के अंदर जो एक फैक्ट डिस्कस किया जाता है दैट इज सिंपली, मैं इतना ही मेंशन करूंगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब व्हाट इज दिस टी स्क्वायर, तो आई विल मेंशन बिलो दैट इट इज सिंपली पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन करने के लिए जो टाइम लगता है एक पर्टिकुलर प्लैनेट को, उसको बोला जाएगा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। इन केस ऑफ अर्थ it is 365 days। okay, and what does the letter R stand for? R stands for mean distance, mean distance of planet, mean distance of planet कहां से,
from the sun, obviously from the sun. तो mean distance of the planet from the sun, इसका मतलब क्या कि as you are aware कि this geometrical figure or this shape or this orbit is not a circle, तो अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करूंगा BS, AS, CS, DS may not be equal, all of them ये equal नहीं होंगे क्योंकि ये रेडियस हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते. तो इन सच केसेस हम लोग मीन डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि मीन डिस्टेंस अलग अलग पोजीशंस पे प्लैनेट को इमेजिन करके उसका रिस्पेक्टिव जो मीन डिस्टेंस होगा उसका क्यूब एंड period of revolution ka square, both of them are very very important. So these period of revolution ka square directly proportional to r cube, period of revolution का square directly proportional to r cube. ये कुछ इस तरीके से हम लोग का केपलर्स का थर्ड लॉ है. I would request everyone to properly go through the laws from the textbook and remember, because it is one of the most possibilities कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है. तो यू नीड टू बी थरो. टेक्स्ट बुक आप अच्छे से रीड करो, मैं तो नोट्स आपको दे रहा हूं बट यू राइट इट ऑन योर ओन एज वेल, आप खुद से भी लिखो. देन I'm shifting over to the next page. In case if you are incomplete or still to write, I'm going to send you all these notes. Don't worry about it. चलो नेक्स्ट हम लोग अभी ऑब्वियसली फोकस करने वाले हैं ग्रेविटेशन जो वर्ड है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation. The Newton's law of gravitation, every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to product of their masses, inversely proportional to square of the distance between them. तो उसको बोला जाएगा Newton's law of gravitation. We are aware about it, आप आराम से learn कर सकते हो. How to apply it? कोई भी object consider करो. Let us consider this as one of the objects and this as the second object. तो ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में whatever distance we are considering, इनसे रिलेटेड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. दैट इज लेट अस कंसिडर इस ऑब्जेक्ट का मास एज m1, ये वाले ऑब्जेक्ट का मास एज m2. The distance between them can be considered as d, alphabet d, small d. So according to universal law of gravitation given by Newton, force of attraction present between these two objects is directly proportional to product of their masses, मतलब m1 multiplied by m2, ये ऐसे. And at the same time that force is inversely proportional to distance का square. इनवर्स प्रोपोर्शन तो मैं ऑब्वियसली इसको 1/d square ऐसे मेंशन करूंगा. When I combine these two, I will get F proportional to m1 multiplied by m2 divided by d square. And in order to remove that sign of proportionality, we should have a constant. So F is equal to capital G multiplied by m1 multiplied by m2 divided by d square. So ये जो capital G mention किया हुआ है children, you need to remember this is universal constant. This is universal constant of gravitation. इसको हम लोग नाम देने वाले हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल जी. ये पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू सेम होता है. It is not the less, it is not more. Everywhere in the universe it is same. The value was first scientifically found out by a person named Henry Cavendish. एंड ये वैल्यू हम लोग को बाय हार्ट होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए. द वैल्यू इज
capital G is equal to 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. This value you must remember properly. 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square पर केजी स्क्वायर. किसने डिस्कवर किया एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले? हेनरी कैवेंडिश ने. सो दिस इज probably one of the important formula which is applied in the Newton's law of gravitation. ये वाला important formula है, मैंने उसको बॉक्स कर दिया. याद रखो, न्यूमेरिकल्स के टाइम पे we need to apply this formula. Yes, there is a possibility कि जो 25 क्वेश्चंस या एमसीक्यूज हम लोग को पूछे जाने वाले हैं उसमें न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, एंड इट विल बी देयर, डेफिनेटली इट विल बी देयर, कंसिडरिंग साइंस 1 में जो फिजिक्स के चैप्टर्स है, एवरी चैप्टर हैज न्यूमेरिकल्स इन इट. नाउ वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लार्ज न्यूमेरिकल्स जिसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे हम लोग को नहीं आएगा. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, let's move on to the next concept very quickly. You can write it later on in case you are pending. Next concept under discussion is small g. Small g, that is acceleration. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. ये जनरली टर्म्ड एज, सिर्फ हम लोग कभी कभी इसको ग्रेविटी ऐसे भी बोलते हैं, सिर्फ ग्रेविटी इतना नाम रखोगे तो भी चलेगा. Yes, whenever an object is falling towards the surface of the earth, its velocity doesn't remain same. It increases as it approaches the earth, and that is the reason we consider there is acceleration happening, which is denoted by small alphabet g, denoted by small alphabet g, and iska formula g multiplied by m upon r square. G multiplied by m upon r square. This is the formula for acceleration due to gravity. This is the formula for acceleration due to gravity. Kabir, I have mentioned the value on the previous page. You will get the notes, don't worry about it. Prince, जो फॉर्मूला बता रहे हो एंड जो मैंने लिखा सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है उसके अंदर, एवरीथिंग इज सेम. ओके, देन स्मॉल g is equal to g into m upon r square. तो what are these different terms? स्मॉल g मैंने ऑलरेडी बताया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कैपिटल G भी प्रीवियस पेज पे मेंशन किया हुआ है, स्टिल आई विल मेंशन, दैट इज gravitational constant है ये. This is gravitational constant. Then capital M, that is mass of planet. Mass of planet. Capital R is the radius of planet. Radius of planet. Yes. We will consider for Earth because we are living on the Earth. So these terms you should know. There are certain factors which influence this value of gravity. कुछ ना कुछ factors है जो ये value influence करते हैं gravity को. तो मैं just यहाँ पे mention करता हूँ, factors affecting value of g. ये जो ग्रेविटी हम लोग बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस वैल्यू को अफेक्ट करने वाले जो वैल्यूज है, दैट इज वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज रिलेटेड टू हाइट या ऑल्टीट्यूड, वॉट एवर यू कैन कॉल. एज वी ट्रेवल अपवर्ड्स, जैसे जैसे हम लोग ऊपर 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 जाएंगे, देयर हैज टू बी कंसिडरेशन ऑफ हाइट इन दैट. हम लोग वो हाइट को निग्लेक्ट नहीं कर सकते. And as a result, because we cannot neglect it, the formula gets changed to small g equal to g into m. न्यूमरेटर में कुछ इंपैक्ट नहीं होता,
but denominator, instead of writing just r square, I need to mention this as r plus h, where h is the height, the whole square. r plus h the whole square ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा. And what will happen because of it? When the h value increases, जैसे हम लोग धीरे 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 ऊपर जाएंगे, ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे, वैसे ग्रेविटी का जो वैल्यू है इट विल डेफिनेटली डिक्रीज. ग्रेविटी का वैल्यू जो है इट विल डेफिनेटली डिक्रीज. जी वैल्यू डिक्रीजेस. तो वी कैन कंसिडर देयर इज इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी इन बिटवीन देम. हाइट इंक्रीज हो गया तो ग्रेविटी का वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीज होने वाला है. हाइट इंक्रीज हो गया तो ग्रेविटी का वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीज होने वाला है. ओके, let's turn our attention to second factor, which is depth. As we travel inside the earth, there is a limitation to it obviously, but still under consideration, अगर हम लोग deep 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 earth के अंदर जा रहे हैं, if we are going deep inside the earth, then the mass of the object under consideration changes, and as a result depth अगर मैं increase करते जाता हूं, if depth increases, then again g value जो है decreases, कि g value कम होने वाला है. If you manage to reach the center of the earth, which is the core, then the gravity will be zero over there, because वहां पे ऑब्जेक्ट का मास कंसिडर करने की जरूरत नहीं. And mass being a factor which is present in the numerator of the formula, अगर mass numerator में present है, okay, तो obviously it is not essential कि बाबा वो present हो. mass अगर हम लोग ने consideration नहीं किया, then depth की वजह से gravity value will become zero. Just to give a short explanation of this, ध्यान दो, when I am considering the earth as a whole, okay, and अगर मैंने उसका जो exact center है वो consider किया, when the object is present over here, जो मैंने red color से object draw किया हुआ है, because it is present on the surface of the earth, the entire mass of the earth need to be considered. पूरा जो ऑब्जेक्ट का अर्थ का मास है वो मुझे कंसिडर करना पड़ेगा while calculating the gravity value, while considering its force of attraction. लेकिन जैसे मैं अर्थ के अंदर जाता हूं, रिमेंबर, as I go inside the earth, देखो मैंने ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर ड्रॉ किया हुआ है, मैंटल जो सेकेंड लेयर रहता है वहां पे. तो there I need to consider only the portion of the earth which is below it, only the portion of the earth which is below it, and as a result mass का consideration कम होते जाता है. when you reach obviously the center of the earth, एकदम सेंटर पे अगर पहुंच गए तो मास का कंसिडरेशन तो निग्लेक्ट हो जाएगा, कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. that is why as we go deep inside the earth, mass consideration becomes negligible, and as a result mass consideration becomes negligible, and as a result it is very important to remember that the g value also decreases. G value also decreases. Okay, third factor, shape of the earth. We all know it is not a perfect sphere. It is flattened at the poles and it is bulging at the equator. Flattened at the poles and bulging at the equator. There is no formula for depth, Tushar. There is no formula for depth. We just need to remember the fact whatever it is mentioned. Shape of the earth में हम लोग को क्या दिखाई देता है? That radius of the earth at poles and radius of the earth at equator, these are not same. The radius value at equator is greater. ये ज्यादा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक 10 to 15 किलोमीटर्स का डिफरेंस है जो कैलकुलेट किया गया है. And because of which g value at poles and g value at equator is also different. G value at poles is greater. G value at poles is greater as compared to g value at equator.
एंड एज a result ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज अगर हम लोग को याद करना है, it is 9.832, this is 9.780, बट इन जनरल जो हम लोग वैल्यू कंसिडर करते हैं g का वैल्यू फॉर अर्थ विच इज इन जनरल कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस देव, क्या हो गया? Dev Sharma, you have raised your hand. Is there any doubt? Okay. तो 3 फैक्टर्स मैंने यहां पे मेंशन किए, हाइट, डेप्थ एंड शेप. As we approach from poles to equator, the radius value increases. Radius factor डिनोमिनेटर में आता है. अगर मैं डिनोमिनेटर इंक्रीज करता हूं देन ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा. इसलिए यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट द पोल्स ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ g एट द इक्वेटर. So this is regarding acceleration due to gravity. This is regarding acceleration due to gravity. Okay. अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे 2 डिस्टिंग्विश मैं आपको मेरे नोट्स में भेज दूंगा. 2 डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स आई एम गोइंग टू इंक्लूड इन माय नोट्स. तो वो क्या रहेंगे, जस्ट मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूं कि फर्स्ट विल बी डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g. ये दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश होगा. कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है. ओके. Avishkar, yes, radius is also 0 and anything divided by 0 is obviously infinity. Mathematically you are absolutely correct, but the thing is numerator में जो mass value है that plays an important role. The force of attraction first depends on the mass of the object. तो अगर मैं numerator का value consider नहीं कर रहा हूं then I am wrong. I need to focus first on the numerator which considers the mass and then I will go to the denominator. But numerator का value 0 अगर हो गया तो I don't have to think about radius being 0. Mathematically you are correct, but हम लोग उसको theoretically importance नहीं देते, हम लोग mass को importance देते. Okay. Second distinguishing fact which we are talking about is mass and weight. ये second distinguishing fact है. You know, ये एक point of distinguish रहेगा, आपके notes में include कर दूंगा मैं. Mass का SI unit kilograms, weight का SI unit newtons, as you all are aware. And all the distinguishing points you can easily go through them. Mass and weight by mistakenly taken as the same thing, but they are not the same thing. Remember, they are different. Okay. First distinguishing point, Kshitij. Mass is nothing but quantity of matter. It is nothing but quantity of matter, ki how much amount of a particular substance is present, and we can express that in terms of kilograms being the SI unit. And when it comes to weight, it is actually a force due to which the object is attracted. Object is attracted towards the respective planet. Towards the planet. जो भी planet होगा उसकी तरफ जो object जो है attract हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं yes. Weight can change from place to place. Mass will remain always constant. क्योंकि weight का एक formula भी है children. Weight is nothing but mass multiplied by this gravity value. मास का कोई स्पेसिफिक ऐसे फॉर्मूला नहीं है, हम लोग को दूसरे फॉर्मूला से मास निकालना पड़ता है, बट वेट का स्पेसिफिक फॉर्मूला है. ऑल दीज डिस्टिंग्विश यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. मैं आपको नोट्स भेजने वाला हूं, उसके थ्रू आप समझ सकते हो. यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. एंड इन केस इफ यू हैव डाउट्स एंड डिफिकल्टीज, कीप ऑन रिकॉर्डिंग इट, कीप ऑन राइटिंग इट समवेयर.
we are going to keep some doubt lectures as well in the evening time slot. हम लोग डाउट लेक्चर्स भी कुछ ना कुछ रखने वाले हैं, so that time you can ask your doubts freely to me. Okay? Then इसके बाद next under consideration free fall. Yes, free fall. Free fall, the term suggests when the object is, in the downward motion approaching towards the earth only due to gravity की वजह से जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तब उसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं. एंड एक्चुअल में फ्री फॉल इज ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम. एयर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ पे होता है, but it doesn't create a lot of them. There is a famous experiment done by Galileo Galilei from the Leaning Tower of Pisa when we had dropped two objects, one of 10 kg, other of 1 kg from the same height, and he observed that both these objects reached the ground at the same time. दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टाइम पे नीचे पहुंच गए थे, ये उसने ऑब्जर्व किया था. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एंड कंप्लीट इट. बट वैक्यूम में परफेक्टली होता है. वैक्यूम में इफ आई ड्रॉप अ स्टोन एंड अ फेदर, तो both of them reach the ground simultaneously. This is the very good example of free fall. अब free fall में हम लोग को क्या याद रखना है? There are certain formulae which we need to remember that emphasizes on equations of motion. Equations of motion पे emphasis करने वाले. First equation of motion, V is equal to U plus AT. Second formula, S is equal to UT plus half AT square. And the third equation of motion, V square is equal to U square plus 2AS. अब when it comes to free fall, हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं. हम लोग एक्सेलरेशन की जगह पे लेटर यूज करेंगे ग्रेविटी का, स्मॉल जी. इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्सेलरेशन हम लोग स्मॉल जी ये कंसिडर करने वाले हैं. ओके, तो हाउ विल द फॉर्मूला चेंज? क्या चेंज होगा वो देखो. V इज इक्वल टू U प्लस GT ऐसे हो जाएगा. एक्सेलरेशन A की जगह पे ग्रेविटी हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है. व्हेन इट कम्स टू फ्री फॉल, S is equal to UT plus half GT square. S is equal to UT plus half GT square. And the last one, V square will be equal to U square plus 2GS. Yes, V square will be equal to U square plus 2GS. तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने मेंशन किए हुए हैं, these are nothing but of equations of motion only, but you need to remember them because they might be applicable in some numericals. As I told you, numericals are expected, so it is definitely considered. Yes, gravity is not applicable in vacuum. इसके लिए G is equal to 0. Yes, you are correct. Okay, चलो तो फिर अभी कंसिडर करते हैं और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स. कोई भी ऑब्जेक्ट का जब पर्टिकुलर अपवर्ड मूवमेंट होता है, ओके, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मूवमेंट जब होगा तब ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0. इट्स final velocity is 0 and the G value to be taken as negative. G value to be taken as negative. G value to be taken as negative. Okay. On the other hand, if I'm talking about a downward motion, अगर मैं downward motion की बात कर रहा हूं,
If I'm talking about downward motion, I repeat, an object coming downwards. If I'm talking about downward motion, so always remember initial velocity to be taken as zero. Initial velocity to be taken as zero and g value to be taken as positive, because direction of gravity is always downwards ना, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, इसके लिए हम लोग को जी वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करना है, जी वैल्यू को हम लोग को पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो फ्री फॉल से रिलेटेड दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में मैंने कंसिडर किया था, yes, when the object is coming downwards u value is to be taken 0, initial velocity हम लोग को 0 लेना होता है डाउनवर्ड मोशन के लिए। डाउनवर्ड मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन के लिए it is always v value 0. I will explain it to you कि ये ऐसे क्यों होता है, why do we take like this, that's a reason पण सांगतो मी तुम्हाला। ये देखो नेक्स्ट पेज पे, I am considering a single object, I need to throw this upwards। अगर मुझे इसको ऊपर फेंकना है तो आई विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स, मतलब इट विल हैव सम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ इसको होगा, समथिंग और द अदर, वी कैन नॉट कंसिडर इट एज जीरो। व्हेन इट रीचेस अ पर्टिकुलर हाइट, अगर आपने केयरफुली कभी ऐसे ऑब्जर्व किया, सॉर्ट ऑफ अ मोमेंट ऑफ अ सेकेंड द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स ओवर देयर, वेरी फ्यू सेकेंड्स या उससे भी कम टाइम के लिए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए वो वहां पे स्टॉप करता है। एंड देन व्हेन इट अप्रोचेस डाउनवर्ड्स, जब वो नीचे की तरफ अप्रोच करेगा, व्हेन इट अप्रोचेस डाउनवर्ड्स, ओके, इट कम्स आउट विद सम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज इंक्रीजिंग। तो बिकॉज ये स्टॉप करता है, इसलिए हम लोग डाउनवर्ड मोशन का इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर करते हैं and final velocity will have some particular value. Final velocity will have some particular value. That is why in upward motion, initial velocity has some value, but final velocity 0. In downward motion, it is exactly opposite. कि top से object नीचे आ रहा है, it has taken a momentary rest at some level, at some height. So u value is 0. But v value will be definitely there. v value कुछ ना कुछ वहां पे होने वाला है। Okay, is this clear? All right. So free fall, we can consider zero urja if the object stops there. There is a possibility कि object can bounce back as well. तो अगर bounce back वगैरह हुआ तो उसके और हम लोग applications करने पड़ेंगे, but when it hits the ground, it is possible it can be 0 if it stops. Okay, all right, यहां तक समझ में आ गया? कुछ डाउट इसके अंदर? So these are the main points under consideration. और एक जो पर्टिकुलर फैक्टर है, और एक जो पर्टिकुलर फॉर्मूला विच वी नीड टू रिमेंबर, हम लोग को जो याद रखना है, विच इज कॉमनली आस्क्ड, जो पूछा जाता है, दैट इज रिगार्डिंग एस्केप वेलोसिटी। दैट इज रिगार्डिंग एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप, द वर्ड सजेस्ट दैट कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं एक इतना फोर्स या इतना ज्यादा वेलोसिटी इंपार्ट करता हूं so that it escapes the gravitational field of the earth, it is possible to do this using some machines or rockets or satellite launch vehicles. ये definitely possible है अगर मैं sufficiently strong velocity उसको impart करूंगा, तो it will be out of earth's gravity and it will not return to the earth, बिकॉज ग्रेविटी को हम लोग ने बीट किया हुआ है, अर्थ के ग्रेविटी को, एंड उसके बाहर चले गए। सो द एक्सप्रेशन फॉर दिस इज वी एस्केप इज अंडर रूट 2 स्मॉल g and r,
ऐसे दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला जो थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग को मिलता है, दैट इज वी एस्केप इज अंडर रूट 2gm upon r, 2gm upon r। sorry, either of these formula is applicable। एंड अर्थ के लिए सारे वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट किया गया तो एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ मतलब वी एस्केप फॉर अर्थ, अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकालना है, परमानेंटली बाहर निकालना है, so that it should not return to the earth, then the velocity to be imparted is 11.18 kilometers per second. A special unit is mentioned over here, 11.18 kilometers per second, or you can almost consider this approximately 11.2 kilometers per second। तो अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ग्रेटर देन ये वैल्यू होता है 11.18 और 11.2, देन द ऑब्जेक्ट कैन एस्केप द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इट विल नॉट रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो रिटर्न नहीं आएगा, वो पूरा निकल जाएगा परमानेंटली। जो भी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं उनके लिए दिस वेलोसिटी इज मस्ट, उनके लिए दिस वेलोसिटी इज डेफिनेटली मस्ट, विच इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, एस्केप वेलोसिटी। ओके, इसका डेरिवेशन वगैरह ऑब्वियसली एमसीक्यू में आपको नहीं आएगा, फॉर्मूला अगर आया तो इसके वैल्यूज अगर पूछे तो। ओके, एनी फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड तुषार, any formula can be applied by using both the formulae for earth we are getting this value which you need to remember, by using both the formulae we are getting this particular value which you need to remember, वो आपको याद रखना। ये सारे जो हम लोग ने स्लाइड्स देखे अभी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ओके, ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉज सबसे पहले, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो डिफरेंसेस में आपको ऐड करके नोट्स में भेजने वाला हूं विच आई वांट यू टू स्टडी प्रॉपरली। वन डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेकेंड डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एंड फ्री फॉल के रिलेटेड कुछ टर्म्स, ये लास्ट वाला एस्केप वेलोसिटी। these are the main points when it comes to, you can say, gravitation chapter of 10th standard SSC science 1। ये main points है। along with that you need to go through the textbook, आपको textbook अच्छे से read करना है thoroughly, properly, and you need to prepare your own notes। if you have any doubts keep them recorded। जब हम लोग का lectures होगा, difficulty lectures, doubt lectures, that time we will definitely solve it। हम लोग तभी वो definitely discuss करेंगे। ओके, जस्ट यहां पे मेंशन करता हूं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, देन द ऑब्जेक्ट escapes gravity of earth। yes तो ये होगा हम लोग के स्पेस अपने ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए। अब हम लोग को डिस्कस करना है रिगार्डिंग द नेक्स्ट चैप्टर विच इज ग्रेविटेशन, और अपना स्पेस मिशन विच इज रिलेटेड टू दिस ओनली। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है विच इज क्वाइट इजियर, कि स्पेस मिशन का पर्पस क्या होता है, व्हाई वी आर हैविंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा, इसरो, ESSR वगैरह वगैरह, काफी सारे जो है, ESA, USSR, व्हाटएवर यू कैन कंसिडर। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस ने स्पेस मिशंस क्यों इंपॉर्टेंट दिया,
all those theoretical part you can easily study on your own. मतलब जिसमें हम लोग कंसिडर करेंगे definition of space mission, okay, need and importance, कि क्यों importance है. Then there is a table in the textbook, मैं आपको भेज दूंगा वापस PDF में, table relating to different types of satellite, you can also consider definition of a satellite. तो ये सब theoretical parts है which you can easily study from the textbook. You will not find any difficulty as such. इसमें कुछ आपको इतना difficulty वगैरह महसूस नहीं होगा. Okay, easily आप खुद से study कर सकते हो. You can revise it proper without any problem as such. Then is some information regarding, you can say, India space mission या स्पेस डेब्री एंड इट्स मैनेजमेंट वगैरह वगैरह दिया हुआ है, तो जो आसानी से आप कर सकते हो. थोड़ा सा रीड करोगे तो मून मिशंस के बारे में मेंशन किया है थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में. देन देयर इज एस्ट्रोनॉट्स, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स. ओके, ये मेंशन किया हुआ है. देन देयर इज स्पेस डेब्रीज and management. All these are small points which are mentioned जो आपको याद रखना. Apart from this, what we are emphasizing on, there is one more value. Okay, मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करता हूं, ध्यान दो. Considering this is the Earth and there is a satellite, तो अच्छे से याद रखो, द सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए वी रिक्वायर एस्केप वेलोसिटी. तो मैंने यहां पे ई एस्केप ऐसे मेंशन किया. इट इज पॉसिबल क्षितिज, वी एस्केप यहां से मेंशन किया पिंक कलर में, सो दैट जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट विल एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. कंसिडरिंग ये मैंने यहाँ पे अर्थ ड्रॉ किया हुआ है. बट सिर्फ सैटेलाइट एस्केप हो गया मतलब मेरा काम हो गया, ऐसे नहीं होता है चिल्ड्रन. वी वांट दैट सैटेलाइट टू रिवॉल्व. हम लोग को चाहिए कि वो रिवॉल्व करे, प्रॉपर अर्थ का चक्कर लगाए. वी वांट इट टू रिवॉल्व. सो उसको और एक वेलोसिटी देना पड़ता है, एंड दैट वेलोसिटी is referred as VC. and ये VC का मतलब है critical velocity. हम लोग इसको नाम देने वाले हैं critical velocity, so that the satellite orbits around the earth. इसको और एक नाम दिया गया है orbital velocity. अगर मैं सैटेलाइट को ये वेलोसिटी इंपार्ट नहीं करता, then it will not revolve around the earth. After I give it a velocity more than escape velocity, जब वो उसके पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाएगा, तब जाके मुझे उसको और एक वेलोसिटी tangentially इंपार्ट करना पड़ता है. and as a result that velocity is called as critical velocity or orbital velocity. उसको मैं critical velocity या ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसे कंसीडर करता हूं. उसको इस तरीके से मैं मेंशन करता हूं. इट शुड रिवॉल्व. व्हेन वी अप्लाई दिस क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, देन द सैटेलाइट revolves
अराउंड अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व होता है, ओके, अदरवाइज इट विल नॉट रिवॉल्व। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। क्रिटिकल वेलोसिटी vc इज अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, जी एम अपॉन आर प्लस एच। हाइट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर, हाइट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर। रिमेंबर कि सैटेलाइट का हाइट क्या रहता है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि कितना क्रिटिकल वेलोसिटी देना है। मैं यहां पे मेंशन करके रखूंगा फॉर योर रेफरेंस कि मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट डजंट प्ले एनी रोल, तो उसके सामने मैंने क्रॉस डाल दिया। मास ऑफ सैटेलाइट, उसके सामने मैंने क्रॉस डाल दिया। लेकिन व्हेन आई कम टू द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, तो हाइट ऑफ द सैटेलाइट हैज टू बी कंसिडर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी। उसके सामने मैंने टिक किया हुआ है, उसके सामने टिक किया। Yes, Vaishnavi, you are right. Critical velocity is less than that of escape velocity. Okay, critical velocity is less than that of escape velocity. यहाँ पे और एक जस्ट एक चेंज करता हूं, ऐसे लिखते हैं कि v must be greater than v escape या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू v escape का होगा तो वैल्यू जाएगा। एट क्रिटिकल वेलोसिटी ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टेंजेंशियल वेलोसिटी देना पड़ता है बिकॉज ऑफ विच वो रिवॉल्व होगा, अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व होगा, उसके लिए हम लोग को देना पड़ेगा। अब ये रिवोल्यूशन के कुछ पैटर्न्स है चिल्ड्रन, कि ऑर्बिट जो करते हैं सैटेलाइट, इनके कुछ रिस्पेक्टिव पैटर्न्स है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। मैं ड्रॉ करता हूं अर्थ इन द सेंटर, ओके। एक जो रहता है ऑर्बिट इज वेरी क्लोज, काफी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये देखो बहुत क्लोज है, ओके। मैं जो कलर से ड्रॉ करता हूं, जस्ट मैं यहां पे 1 मेंशन कर रहा हूं, एंड 1 इज वेरी क्लोज, लो अर्थ ऑर्बिट, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 180 to 2000 किलोमीटर्स, 180 to 2000 किलोमीटर्स, इतना हम लोग कंसिडर करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट। अब लो अर्थ ऑर्बिट में व्हाट डू यू फाइंड कि क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वी हैव ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, which is built by various different countries and nations, a space station. Along with that, if you have heard about Hubble telescope, हबल टेलीस्कोप का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो ये दोनों इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं। देन इसके बाद सेकेंड ऑर्बिट, इफ आई कंसिडर कि सेकेंड ऑर्बिट अगर मैं ड्रॉ करूं, तो सेकेंड ऑर्बिट कैन बी कंसिडर्ड विच इज स्लाइटली बिगर देन दिस, स्लाइटली बिगर एंड लार्जर देन दिस एज वेल। तो मैं ये सेकेंड ऑर्बिट ड्रॉ करता हूं, अर्थ का जो पर्टिकुलर चक्कर लगा रहा है वो, एंड सेकेंड ऑर्बिट के लिए नाम दूंगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ओके, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट को शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी LEO ऐसे भी बोलते हैं, ओके। चाहिए तो मैं डायग्राम के बाजू में वो ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज LEO शॉर्ट फॉर्म। मीडियम वाले को तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग, MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? द वैल्यू इज, यू कैन कंसिडर फ्रॉम 2000 kilometers to 35,780 किलोमीटर्स, 2000 से लेके 35,000, अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर्स, ये हम लोग कंसिडर करेंगे।
अप्रोक्सीमेटली इतना हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. ओके, देन यहाँ पे जो सैटेलाइट्स है, जनरली यू कैन कंसिडर द एग्जांपल ऑफ जीपीएस सैटेलाइट्स, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट्स जिसको बोलते हैं वो. GPS satellites are revolving over here. Okay, GPS satellites are revolving over here. There is one more which is the last orbit, और एक ऑर्बिट जो कंसिडर किया जाता है which is the last orbit, that is the probably very large, काफी बड़ा ऑर्बिट है वो, tremendously large orbit which can be considered, okay, at a very long height. Okay, तो इसको मैं मेंशन कर रहा हूं HEO, that is थर्ड. ये हो जाएगा अपना हाई अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट. अब हाई अर्थ ऑर्बिट मतलब क्या? जिनका हाइट इज ग्रेटर देन 35,780 किलोमीटर्स, उससे ज्यादा जिनका हाइट रहता है वो, एंड जनरली यहाँ पे अलग अलग सैटेलाइट्स जो टेलीविजन के सिग्नल्स या यू कैन कंसिडर मोबाइल के सिग्नल्स कैरी आउट करते हैं वो, और यू कैन इवन कंसिडर रेडियो सिग्नल्स, और दे कैन बी ऑल्सो यूज फॉर द पर्पस ऑफ मीट्रियोलॉजी. इन सब के लिए जो रिस्पेक्टिव होते हैं वो. ओके, अब इनका पर्टिकुलर टाइम फॉर्मेट में भी मेंशन करता हूं कि एक रिवॉल्यूशन लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, हाउ मच टाइम इज नेसेसरी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. लो अर्थ वाले जो होते हैं ना चिल्ड्रन, दे कंप्लीट रफली वन रिवॉल्यूशन इन 90 मिनट्स. 90 मिनट्स के आसपास इजीली 1.5 आवर में खुद का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देते हैं. जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होते हैं, दे कैन रिक्वायर 2 to 24 आवर्स, 2 आवर्स से लेके 24 आवर्स तक, डिपेंडिंग इनका हाइट कहां पे है. अगर वो अर्थ के नजदीक होंगे तो जल्दी हो जाएगा, अर्थ से दूर होंगे बिकॉज द रेंज इज वेरी बिग ना, 2000 to 35,780, काफी बड़ा रेंज है, इसके लिए 2 to 24 आवर्स. एंड व्हेन इट कम्स टू HEO, जब HEO के बारे में बात करते हैं तो एग्जैक्टली 24 आवर्स इनको लगते हैं. सो मेनी अ टाइम्स दे अपीयर स्टेशनरी एज वेल. वो हम लोग को लगते हैं कि स्टेशनरी है बिकॉज दे आर मूविंग अलोंग विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ. इनका रिवोल्यूशन का टाइम, HEO का रिवोल्यूशन, ये देखो मैं यहाँ पे लेफ्ट में मेंशन करता हूं, HEO, their revolution का टाइम इज सेम एज अर्थ के रोटेशन के टाइम पे बराबर है, अर्थ के रोटेशन के टाइम पे बराबर है. दैट इज व्हाई these satellites are also referred as geostationary, or you can call it as geostationary or geosynchronous satellites, because they appear stationary with respect to the earth. कि अर्थ का जो रोटेशन एंड HEO का रिवोल्यूशन इज एग्जैक्टली द सेम. So geostationary and geosynchronous to the earth, ये ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं. Okay, so these are the different, you can say, types of orbits जो हम लोग ने बात किया. ये आप लोग को याद रखना है प्रॉपरली, जो इंफॉर्मेशन अपने साइंस 1 के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो. These are the types of orbits which I am talking about. Take a note of this quickly. Yes, height is important to remember, Tushar. Yes, Kshitij, they revolve at the same speed.
चिल्ड्रन, मैंने दोनों ग्रुप्स में आप लोगों के एमसीक्यू का पार्ट मैसेज कर दिया है. इट्स अ पीडीएफ फाइल. आई होप यू हैव रिसीव्ड इट. एमसीक्यू जो है, there are 25 MCQs in total. 15 MCQs are there of gravitation and 10 MCQs are there of, you can say, space missions. तो try to solve it right now. हम लोग one by one discuss करेंगे. I will explain you the answers. There are 25 MCQs which I have mentioned over there. Please solve करो आप लोग. Then we will check with the answers. जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करना है आप लोगों को. सेंट ऑन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप. अभी सॉल्व करना है. एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स वन बाय वन. जो आता है, जैसे आता है वैसे आप आंसर किधर तो नोटबुक में लिखो. ए बी सी डी ऐसे लिखो. वॉट एवर आंसर यू गेट, वी विल डिस्कस एवरी सिंगल आंसर. प्रिंस, मैं सारे आंसर्स डिस्कस करने वाला हूं. आप सॉल्व करो. जैसे जितना आता है आपको सॉल्व करो.
यस प्रिंस, मैं बोल रहा हूँ, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, स्क्रीन पे लिख के बताऊंगा क्या आंसर है वो, डोंट वरी।
चलो, आई थिंक आंसर्स मस्ट हैव बीन फिनिश्ड. वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ आप लोग के साथ. जो आंसर है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा आप लोगों को. ओके, तो लेट्स जस्ट डिस्कस इट. ओके, चलो वन बाय वन आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, that is force of gravitation between two objects, is A आंसर. फर्स्ट का आंसर A होने वाला. सेकेंड वाला, if the distance between two bodies becomes half, then the gravitational force between them becomes C, 4 times. ओके, कैसे होगा जस्ट साइड में एक्सप्लेनेशन देता हूं. नॉर्मल वैल्यू फोर्स का G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर. नाउ एज वी से हाफ, तो G इंटू M1 M2 M2 अपॉन हाफ मतलब D अपॉन 2 का होल स्क्वायर. ओके, तो ये हो जाएगा G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर अपॉन 4. तो ये जो 4 वैल्यू है ऊपर आ जाएगा एंड इट विल बिकम 4 इंटू G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर. ओके, तो ये 4 टाइम्स ऐसे आ रहा है. देखो, इसके लिए मैंने वो आंसर वहां पे मार्क किया, 4 टाइम्स. सेकेंड का आंसर सी. आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज. देन थर्ड वाला, इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस 5 टाइम्स, थर्ड वाला, तो थर्ड वाले का आंसर भी वापस सी होने वाला है. थर्ड वाले का आंसर भी वापस सी होने वाला है. ठीक है, ये रहेगा. ओके, देन थर्ड वाले का इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, थर्ड वाला कुछ ऐसे होगा, बिकॉज इट विल बी 5 टाइम्स, तो डिनोमिनेटर विल बिकम 5D स्क्वायर. ये G M1 M2 वैसे ही रहेगा. So that will be equal to 1 upon 25 into G M1 M2 upon D square. इस वजह से, तो that's why I mentioned the answer as 1 upon 25, थर्ड वाले का C. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन. फोर्थ वाले क्वेश्चन का, moon will also, earth will also attract with the same force, that is B option, 10 raised to 20, same force, B option. Okay, let's go to the fifth one. Value of acceleration due to gravity, height h अगर रहेगा तो we have to consider it. आज ही मैंने एक स्लाइड में बताया हुआ है, C ऑप्शन. फिफ्थ का आंसर रहेगा C ऑप्शन. फिफ्थ का आंसर होने वाला है C ऑप्शन. ओके, इज देयर एनी डाउट इन दीज फर्स्ट 5? Is there any doubt in these first 5? Yes, Kshitij, go ahead. फोर्थ का आंसर बी लिहिलंय मी, समोर दिसतंय स्क्रीनवर. फोर्थ का आंसर बी, आई हैव रिटन इट. yes, at the center of the earth value of G is 0. करेक्ट है. नेक्स्ट मी करतोय अजून डिस्कस. नेक्स्ट अजून मी डिस्कस नाही केलाय. चलो, सिक्स्थ वाले का आंसर, वैल्यू ऑफ G अब पोजीशन A एंड C दोनों जगह पे, म्हणजे सेंटर ऑफ द अर्थ को 0 रहेगा एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी 0 होगा. सो करेक्ट ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड इज D. रिमेंबर, करेक्ट ऑप्शन टू बी सिलेक्टेड फॉर सिक्स्थ वन इज D, क्योंकि 2 आंसर्स ऐसे हैं जिसमें 0 वैल्यू मुझे मिलने वाला है. ओके, नेक्स्ट वाला, सेवेंथ वन, दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, A ऑप्शन.
कहां पे भी जाओ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट है, इट विल नॉट इंक्रीज डिक्रीज, कुछ नहीं होगा उसके अंदर. देन 8th वाला आंसर, weight of the body gradually increases from, gradually increases from, increase कहां से होता है, तो जहां पे g का वैल्यू इंक्रीज होते जाता है, तो g वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स. ओके, इसके लिए ऑप्शन ए. आई विल जस्ट हैव एन एग्जांपल फॉर दिस. इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर, डिक्रीजेस फ्रॉम दिया है, अच्छा वेरी सॉरी मैंने गलत रीड किया, तो पोल्स टू इक्वेटर, यस poles to equator, it should have been decreases from, very sorry for that. Okay, so poles to equator, B option. Q हम लोग ने देखा था कि G at the poles is 9.832 and G at the equator is 9.780. correct? तो as a result weight will also change, weight में थोड़ा सा change आएगा. okay, then 10th वाले का आंसर देखते हैं, सॉरी 9th वाला बचा है ना, 9th वाले का इट विल बी ऑप्शन ए. 9th वाले का ऑप्शन ए, 1 kg विथ अ फोर्स विच इज इक्वल टू, ये कैसे आया बताता हूं. फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन डी स्क्वायर. करेक्ट. अब ये फॉर्मूला में मैं क्या चेंज कर रहा हूं वो देखो. इंस्टेड ऑफ M1 M2 I am writing capital M because one of the object is mass of the earth. Second object जो 1 kg का दिया है वो small m लिखता हूं. And distance के लिए I can consider radius r square. तो फिर ये पूरा वैल्यू जो है gm upon r square, this is nothing but small g multiplied by small m and that is the force of attraction. तो वो कितना हो जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1. इसके लिए आंसर 9.8 विच इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 9. 9 का ए आंसर रहेगा 9.8. ओके, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 10th वाला. तनिष्का, आर स्क्वेअर साठी एक पर्टिक्युलर रिझन आहे ज्याच्यामध्ये सर आयझॅक न्यूटननी केपलर्स के थर्ड लॉ का रेफरन्स लेके आर स्क्वेअर ऐसे लिया था. जर शॉर्ट मध्ये सांगायचं झालं व्हाई इज इट आर स्क्वेअर, कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस 2 बार कंसिडर किया जाता है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी एंड फ्रॉम बी टू ए इट इज 2 टाइम्स विच इज कंसिडर्ड. सो एज अ रिजल्ट हम लोग आर स्क्वेयर ऐसे लेते हैं. एंड सर आइजैक न्यूटन ने इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी दिया हुआ है. अब ऑब्वियसली डेरिवेशन आप लोग को नहीं आएंगे इसलिए मैंने वो डिस्कस नहीं किया. यू कैन स्टडी फ्रॉम एसएससी टेक्स्ट बुक इफ यू वांट. ओके, देन 10th वाले का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h, तो इसका ऑप्शन होने वाला है ए, माइनस GMM अपॉन R प्लस H. ओके, कैसे रहेगा, तो जनरली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh रहता है. ऑलराइट, तो m मल्टीप्लाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय g इंटू m अपॉन r प्लस h, ये ऐसे कंसिडर किया जाता है. दिस इज द कंसिडर्ड. लेकिन h वैल्यू हम लोग थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं. एंड निगेटिव टर्म क्यों दिया है, because when the object is traveling upwards, gravity is taken as negative. मैंने पीछे के एक स्लाइड में आपको ये बताया था, the gravity is taken as negative. इस वजह से हम लोग ये माइनस GMM अपॉन R ऐसे कंसिडर करते हैं. इलेवेंथ वाला, sun at one of the foci, ए ऑप्शन केपलर्स फर्स्ट लॉ है. देन उसके बाद 12th वन, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, सॉरी 12th वन, इक्वल एरिया, डी ऑप्शन इक्वल एरिया. देन उसके बाद 13th वन, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ए ऑप्शन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. आर्य पवार, हाँ ओके ठीक है, प्रीवियस स्लाइड देख लो, कुछ बाकी रह गया होगा तो.
All right. वन ऑफ द एच गेट्स कैंसल्ड, इस वजह से सिर्फ एच रहता है. दिस इज एच स्क्वायर है ना, तो वन ऑफ द एच हम लोग कैंसिल करके उतना मैथमेटिकली कंसिडर कर सकते हैं. इट इज पॉसिबल. ओके, देन नेक्स्ट वाला 14th वन, पर्सन वेज 60 न्यूटन्स ऑन द अर्थ, तो हाउ मच वुड ही वे ऑन द मून? तो आंसर विल बी डी, क्योंकि इसका रीजन क्या है, ग्रेविटी ऑन मून is 1/6 that of the gravity on earth. तो सेम मैनर में weight on moon is 1/6 weight on earth. तो इस वजह से हम लोग ने आंसर सिलेक्ट किया डी ऑप्शन, 14th का डी ऑप्शन. एंड लास्ट वन, 15th वन, लास्ट वन, free fall, perfectly free fall is possible, you can say in vacuum. B option, बॉम्बे. वैक्यूम में पॉसिबल होगा. परफेक्ट फ्री फॉल जो रहता है वो वैक्यूम में पॉसिबल होने वाला है. ओके, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल. परफेक्ट फ्री फॉल मीनिंग, तुषार, it does not offer any resistance from the air. You know, अगर मैं एक टेरेस से फेदर एंड एक टेनिस बॉल ड्रॉप करता हूं, तो टेनिस बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट बिकॉज द फेदर इज बीइंग ऑफर्ड, यू कैन से, रेजिस्टेंस थ्रू एयर, जिसको बॉयंसी ऐसे भी नाम दिया जाता है. बट व्हेन आई एम यूजिंग द सेम एक्सपेरिमेंट, व्हेन आई एम डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम, देयर इज नो एयर which is present. Only gravity is going to act, and as a result feather and the tennis ball both will fall at the same time. दोनों के दोनों सेम टाइम पे गिरने वाला है इस वजह से. ओके, सो अप टू दिस इज इट क्लियर? आगे देखें स्पेस मिशन के एमसीक्यूज फटाफट, बिकॉज यू ऑल्सो हैव अ नेक्स्ट लेक्चर. एक्सक्यूज मी. और भी एमसीक्यूज हम लोग सेंड करेंगे, डोंट वरी, ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए थे. ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, इंडिया का जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज ऑब्वियसली इनसैट, तो फर्स्ट का आंसर विल बी ए. मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो सी ऑप्शन आएगा. Third question, maximum number of satellites, I think we should select Saturn as the answer now. Maximum satellites होते हैं उसके. Then fourth option, pioneer of Indian space program, तो विक्रम साराभाई. डी ऑप्शन सिलेक्ट करना है यहाँ पे हम लोग को. ओके, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ फोर्थ में थोड़ा अलग क्वेश्चन रीड किया, वेरी सॉरी. Satellite launch vehicle, which of the following is a satellite launch vehicle? PSLV, polar satellite launch vehicle. फोर्थ का आंसर ए लिखना है. एंड देन यू मूव ऑन टू द फिफ्थ वन, पायोनियर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो इट इज विक्रम साराभाई. तो यहाँ पे डी आंसर आएगा. ओके, हाँ, यस 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 यस. देन उसके बाद नेक्स्ट वाला, सिक्स्थ वाला, due to dash we can gather information about worldwide events using sitting at home. okay, अब इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सिलेक्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सैटेलाइट्स है, इसके लिए हम लोग ये सारे इवेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं. इंटरनेट के अंदर भी सैटेलाइट का कुछ ना कुछ रोल रहता है. सेवेंथ क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन ए. एथ वाले में स्पुतनिक फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आई थिंक सब लोग को पता होगा. एथ का सी. देन नाइन्थ वाले का
if a spacecraft is to be sent to travel to outer space, it must have minimum velocity of a, escape velocity जिसको बोलते हैं वो, escape velocity a. And the last answer which we are talking, a group of students from COEP. COEP is College of Engineering Pune. तो COEP जब लॉन्च किया उन्होंने सैटेलाइट, तो उसका नाम स्वयं था. स्वयं was the name of it. Okay. Yes, whatever questions, any questions, type of questions you can consider. Okay, these are all the answers for chapter number 10 MCQ. Are there any other doubts? Previous page पे मैंने सारे consider किए हुए हैं already. Okay, so today we discuss gravitations and space missions. मैं सारे notes आपको forward कर रहा हूँ, जो भी importance है, which I feel I will send it to you. So do read accordingly. Again, आपको अच्छे से properly read करना है. You need to read it, the textbook, and as I told you earlier, you read the textbook and read the textbook and write the notes on your own. खुद से notes लिखो. That is very, very important. That is extremely important. Okay, chalo, bye bye, see you all. Do take care of yourself, study well, study very properly. Okay, bye bye, take care everyone. Notes will be updated in short time. Okay, chalo, bye bye, take care. Vedant, which answer do you want? Yes, I will send the answers in the PDF only. Don't worry. I will send the answers in the PDF only.